In nucleophilic substitution reactions, a nucleophile substitute the halogen atom. Those reactions in which a nucleophile substitute a halogen atom is called are called nucleophilic substitution reactions. What are nucleophiles? Nucleophiles are electron-rich species. They either have negatively charged electron or they have lone pair of electrons. Some of the nucleophiles may be OH negative, which may be obtained from NaOH or KOH, or H2O itself can act as a nucleophile because it has lone pair of electrons. दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, ईथर है ये, उसका रिएक्शन सोडियम से कराया है, तो आपको सोडियम एल्कोक्साइड बनेंगे, तो ये एल्कोक्साइड आयन कैन आल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. आई नेगेटिव ऑफ NaI कैन आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. ये रिएक्शन हमने पढ़ी भी है, फिन कैल्स्टीन रिएक्शन, वहां भी हेलोजन एक्सचेंज हो रहा था ना. दिस वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सिमिलरली NH3 has NH2 as a nucleophile, so you will get RNH2. Similarly, this is dialkyl amine, secondary amine. It can also substitute one of the halogen atoms, cyanide, RCN. If you use KCN, you will get alkyl cyanide. If you use silver cyanide, then you will get silver alkyl isocyanide. ये क्यों फर्क यहाँ पर आ रहा है, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी. पोटेशियम नाइट्राइट, you will get alkyl nitrite. If you use AgNO2, sodium nitrite, then you will get nitroalkane. ये फर्क क्यों आ रहा है मैं इसको डिस्कस करूंगा अभी, but first you see the nucleophiles. This is silver carboxylate. तो ये कार्बोक्सिलेट आयन है, इट कैन आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल आइदर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और दे हैव नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली दिस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दिस H कैन आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस इज मेटल पॉजिटिव आयन इफ इट इज अटैच्ड विद द अल्काइल ग्रुप. इसका जो R डैश है, इट कैन आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. सो व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस that we are going to discuss in detail. I take an example like when a nucleophile like OH negative hydroxide ion, when it reacts with an alkyl halide, it substitutes the halide ion and forms alcohol. Means this reaction can be written like this. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. दिस इज CH3Br, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड, एंड यू गेट CH3OH plus Br negative will be substituted. This OH negative can be obtained from aqueous KOH or aqueous NaOH. This is alkyl halide CH3Br and it forms CH3OH and KBr. So here this OH negative ion act as a nucleophile, and this nucleophile substitute the halide ion to form alcohol. So this nucleophilic substitution reaction may proceed via two routes. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरीके से हो सकती है, उसके दो रूट रहते हैं, दो पॉसिबिलिटीज रहती हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड SN2 mechanism. It may proceed through SN2 mechanism and it may proceed through SN1 mechanism. What type of alkyl halide will be favored by which mechanism, that you will understand at the end of this topic. So this SN2 mechanism is called substitution
nucleophilic bimolecular. S कैपिटल एन सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे N2. दिस इज SN2. Substitution nucleophilic bimolecular. So this SN2 mechanism proceeds in one step only. If we go for the mechanism of this reaction, you will find this type of changes in the reactants and products. This is CH3Br. Deliberately I am writing the open structure of this CH3. You can observe the H are oriented on the left hand side. When this nucleophile OH negative will approach to this carbon atom, what will happen? This old C bond Br start breaking and new O bond C will start forming. This is H, this is H, this is H, and this is an intermediate. And finally, this intermediate will break into the product, in which you can observe the orientation of H atoms is just reverse as that of reactant. In case of reactant, the orientation of H atom was on left hand side, and now they are oriented on right hand side, and this Br negative will eliminate. This is called slow step and this is called fast step. I am saying nucleophilic substitution bimolecular reaction proceed in one step only. मैंने यहाँ पे लिखा स्लो या लिखा फास्ट, लेकिन ये स्टेप एक ही काउंट होगा बिकॉज you cannot isolate this intermediate as in present in the reaction mixture. अगर आप कहोगे intermediate सर isolate करके दिखाइए बना हुआ है, we can't do because reaction is too fast. As soon as this intermediate will form, it breaks into the product. तो ये एक ही step count होगा, but for the sake of more clarification, we used to write slow and fast. लेकिन अगर हम चाहें कि ये इंटरमीडिएट इस रिएक्शन मिक्सचर से रिकवर करके आपको दे दे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ये इंटरमीडिएट बनेगा ये हाईली अनस्टेबल है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इट readily breaks into the final product and you will get alcohol. So it is said that SN2 mechanism proceeds through inversion of configuration. It is said that SN2 mechanism proceeds through inversion of configuration. आप देख सकते हैं इन्वर्ट हो गया है, जो कॉन्फ़िगरेशन है H एटम्स का अराउंड कार्बन एटम वो क्या हो गया इन्वर्ट. So it is said that SN2 mechanism proceeds through inversion of configuration. Why it is called bimolecular? Because in slow step, two molecules, one is nucleophile and second is alkyl halide, are participating. That's why this reaction is called bimolecular reaction. Molecularity of a chemical reaction is the number of molecules colliding in the slowest step of chemical reaction during the product formation. किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो स्लोएस्ट स्टेप में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली. तो क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियोफाइल है एक एल्काइल हाइड्राइड है स्लो स्टेप में,
और दोनों ही कोलाइड करके इंटरमीडिएट फिर देन प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो रिएक्शन है इट इज सेड टू बी बाई मॉलिकुलर, क्योंकि जो मॉलिकुलरिटी है इट इज डिसाइडेड बाय द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर जो स्लो स्टेप है उसमें दो रिएक्टेंट, वन इज न्यूक्लियोफाइल एंड सेकंड एल्काइल हैलाइड, दो हो गए ना, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। नाउ वी गो फॉर the reactivity of alkyl halides. Reactivity of alkyl halides in SN2 mechanism depends on the ease with which this nucleophile OH negative can approach to this carbon atom। ये nucleophile OH negative जितनी आसानी से इस कार्बन पर, जिससे कि अल्काइल, जिससे कि हैलाइड आयन जुड़ा हुआ है, उसको अप्रोच कर लेगा, उतना ही जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होनी है। द रिएक्टिविटी ऑफ SN2 मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन द ease with which this nucleophile approaches to this carbon atom। जितना आसानी से ये OH नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन एटम को अप्रोच कर लेगा, उतनी जल्दी ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप देखिए अगर इस कार्बन के चारों तरफ छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स केवल हैं, छोटा हाइड्रोजन एटम है, ये भी छोटा हाइड्रोजन एटम है, ये भी छोटा हाइड्रोजन एटम है, तो ये OH नेगेटिव की जो अप्रोच है इस कार्बन एटम पर बहुत अच्छे से हो पाएगी। बट इफ इन प्लेस ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम देयर आर बल्की ग्रुप लाइक CH3, ये बल्की ग्रुप आ गया, CH3 और बल्की ग्रुप बढ़ गए, और बल्की ग्रुप हो गया, तो जो OH नेगेटिव की अप्रोच है इस कार्बन पर क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट, और ये इंटरमीडिएट नहीं बन पाएगा, या बनेगा तो मुश्किल से बनेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जो SN2 मैकेनिज्म द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इज इन ऑर्डर 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड ग्रेटर देन 3 डिग्री। देखिए जब इस कार्बन पर केवल हाइड्रोजन एटम थे तो ये कैसा था, 1 डिग्री, एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया 2 डिग्री, एक और एल्काइल ग्रुप लगा दिया 2 डिग्री, एक एल्काइल ग्रुप और लगा दिया तो 3 डिग्री। यानी कि अगर हमारे पास ये स्पीशीज हैं, वी हैव CH3 CH2Br, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अगर हमारे पास आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्टिविटी से कम होगी, 2 डिग्री हो गया। और इफ वी हैव टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड तो उसकी रिएक्टिविटी यहाँ पर सबसे कम होगी। फिर से एक बार समझेंगे, SN2 मैकेनिज्म में जो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म, वो इस बात पे डिपेंड करेगी जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कितना आसानी से इस कार्बन एटम पर, जिस पर कि हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच है, उसको अप्रोच कर पाएगा। तो इस कार्बन पर जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, जितना भीड़ भाड़ कम होगी, उतना इस OH नेगेटिव की अप्रोच इस कार्बन एटम पर इजी हो जाएगी, उतनी जल्दी इंटरमीडिएट बनेगा और उतनी जल्दी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तीन बातें यहाँ पे आपने सीखनी है। इन SN2 मैकेनिज्म proceed in one step only, and in SN2 mechanism in the slow step two reactants, one nucleophile molecule and one alkyl halide molecule participates, and that's why its molecularity will be 2, and that's why it is called substitution nucleophilic bimolecular। और तीसरा, the reactivity of alkyl halide toward SN2 mechanism depends on the ease with which a nucleophile approach to the carbon to which halogen atom is directly attached। और इन SN2 मैकेनिज्म जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ लेफ्ट में H का ओरिएंटेशन है, प्रोडक्ट में जाके क्या हो गया, राइट में हो गया, जैसे तेजाब में छतरी खुल जाती है, बिल्कुल इन्वर्ट हो जाती है, उसी तरह से यहाँ पर भी जो H एटम का ओरिएंटेशन हो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। That's why it is also said during SN2 mechanism inversion of configuration takes place।
यानी कि जो एटम का ओरिएंटेशन है वो प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के मुकाबले क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट SN2 mechanism proceeds through inversion of configuration. If we compare the reactivity of halide sign, so the order of reactivity will be CH3I will have highest reactivity, then Br, then Cl. Cl Bri में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, आयोडाइड आयन की होगी, क्योंकि यहाँ पर जो C बॉन्ड I बॉन्ड है वो सबसे बड़ा बॉन्ड होगा. I का साइज सबसे बड़ा है भाई, FCl Bri में सबसे बड़ा साइज किसका है, I का है, और इसलिए जो C बॉन्ड I बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और इसको इजीली हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि I जो है वो आसानी से रिलीज किया जा सकता है. या यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, I इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, आप भी ये यूज करेंगे. अगर क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ CH3I एंड CH3Br विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN2 मैकेनिज्म, तो आप बताएंगे CH3I हैज मोर रिएक्टिविटी देन CH3Br बिकॉज I इज बेटर लीविंग ग्रुप. यहाँ पर अगर I लगा होता तो वो इस C को आसानी से छोड़ देता है, क्योंकि C बॉन्ड I कैसा है, वीकर बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है. हाँ, रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी अगर CH3I का केस होगा और CH3Br में कंपेयर करेंगे तो रिएक्टिविटी CH3I की ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे टर्म यूज करते हैं बेटर लीविंग ग्रुप. आई विल शो सम सर्टेन एग्जांपल टू यू हाउ दे यूज टू आस्क द क्वेश्चंस. एग्जांपल 11 10.6. In the following pairs of halogen compounds which would undergo SN2 reaction faster. ये आपको कुछ कपल दिए हैं, कुछ पेयर दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा SN2 में तेजी से पार्टिसिपेट करेगा. तो अगर सेमी अल्काइल हैलाइड है, देखिए यहाँ पर सेम हैलोजन एटम है, तब तो आपको ये देखना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी SN2 में, वेरी गुड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी. तो आप देखिए इस कार्बन की अगर हम बात करें जिससे हैलोजन अटैच्ड है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है. इस कार्बन से जिससे कि हैलोजन यहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ पर H भी है, लेकिन यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इस कार्बन से दो कार्बन एटम अटैच्ड हैं डायरेक्टली, सो इट इज अ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड. साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है ना, तो ये कैसा है, 2 डिग्री है. तो बताओ इन दोनों में सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसकी होगी, साइक्लोहेक्सेन पर CH2Cl जो लगा हुआ है साइक्लोहेक्साइल, इट इज क्लोरो साइक्लोहेक्साइल मीथेन, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. देखिए आंसर कैसे लिख रहे हैं, it is a primary halide and therefore undergoes SN2 reaction faster. You have to just find out which one is the primary alkyl halide. Now we go for the second example. CH3 CH3 CH2 CH2 CH2I, कार्बन चेन सेम है. CH3 CH2 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 Cl सेम है. बताइए, दोनों ही प्राइमरी है. अब अभी मैंने आपको बताया जो एल्काइल आयोडाइड्स होंगे वो तेजी से पार्टिसिपेट करेंगे SN2 में. क्यों करेंगे, बिकॉज अभी बताया आपको मैंने, आयोडीन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप. So this compound will react faster because iodine is a better leaving group because of its large size. It will be released at a faster rate in the presence of incoming nucleophile. Haloalkanes react with KCN. जब KCN की रिएक्शन कराते हो आप हैलोएल्केन से, जैसे CH3Br है, तो ये बन जाएगा CH3Cn प्लस KBr.
लेकिन अगर यही रिएक्शन आप AgCN से कराओगे, सिल्वर साइनाइड से कराओगे, तो इस बार साइनाइड्स ना बन के आइसोसाइनाइड्स बनेंगे, यानी कि इस बार जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा CH3NC, मिथाइल आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से KCN से रिएक्शन कराने पर तो एल्काइल साइनाइड बन रहा है, एंड बाय ट्रीटिंग विद AgCN यू गेट आइसोसाइनाइड। तो देखिए जो KCN है इट इज प्रीडोमिनेटली आयनिक इन नेचर, यानी कि ये सोल्यूशन में मैक्सिमम CN नेगेटिव आयंस को फर्निश कर देगा। सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में CN नेगेटिव आयंस जो है वो अवेलेबल होंगे। अब ये CN नेगेटिव आयन जो है ये CH3Br का जो कार्बन है, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, ये CH3 के कार्बन से C बॉन्ड C भी डेवलप कर सकता है और CH3 के कार्बन से N C बॉन्ड N भी डेवलप कर सकता है, क्योंकि आपको यूनिट 9 में पढ़ा हुआ है जो CN है ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं जिनमें दो डोनर साइट्स होती हैं, दे आर द स्पेशल क्लास ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड। एक बार में डोनेशन होगा एक ही एटम से, लेकिन देयर मे बी टू डोनर साइट्स। जैसे CN में डोनेशन कार्बन से भी हो सकता है लोन पे इलेक्ट्रॉन्स का, और N से भी हो सकता है। तो अगर कार्बन से होगा तो कहलाएंगे तो कहलाएंगे साइनाइड्स, और अगर N से होगा दे आर कॉल्ड आइसोसाइनाइड। यानी कि KCN के केस में बहुत एक्सेस में CN negative ions will be present in the solution. Now this CN negative ion is in a condition that it can form bond with the carbon and it can form bond with the nitrogen also. But why it is being preferred that it forms bond with the CH3 bond C? Because C bond CN is stronger, यानी C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन C सिंगल बॉन्ड N। यहाँ जो ये C बॉन्ड N डेवलप हो रहा है इसकी स्टेबिलिटी कम है देन द C सिंगल बॉन्ड C, इसीलिए वो प्रोसेस होगा जो स्टेबिलिटी को लीड करेगा, और इसीलिए मेनली क्या बनेगा CH3CN। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए कितना अच्छा इन्होंने रखा है। हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट, यानी कि साइनाइड्स बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आइसोसाइनाइड्स नहीं बनेंगे, दे विल आल्सो फॉर्म बट एट वेरी लो कंसंट्रेशन, क्योंकि जो बॉन्डिंग है वो तो N से भी हो सकती है ना। ये बात जरूर है कि C बॉन्ड CN जो है वो स्टेबल बॉन्ड है, तो मैक्सिमम बॉन्डिंग यही वाली होगी, ज्यादातर कंपाउंड यही बनेगा, लेकिन आइसोसाइनाइड्स नहीं बनेंगे रिएक्शन में, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये इस तरह से कॉम्पिटिशन में आ सकता है। दिस रिएक्शन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, बोथ हायर कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल साइनाइड देन मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो डी वाला ठीक हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल साइनाइड इन कंपैरेटिव टू मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं बनेगा, बन सकता है, बट इसकी परसेंटेज काफी कम रहेगी, बिकॉज C बॉन्ड N बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड देन द C बॉन्ड C। अब बात आती है AgCN में क्यों बॉन्ड केवल NC से बना, तो उसका रीजन क्या देखिए, जो AgCN है ना ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड है, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड, ये इतनी एक्सिस में CN नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में फर्निश नहीं कर पाता। तो जो CH3Br का जो CH3 है उससे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इसका जो N एटम है वही फ्री रहता है, कार्बन तो इस सिल्वर के साथ एंगेज है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो कौन सा N फ्री है, N फ्री है, और पहले ये CH3 बॉन्ड N डेवलप होगा और बाद में ये Ag बॉन्ड CN टूट जाएगा। तो मेन रीजन क्या है, मेन रीजन ये है KCN इज प्रीडोमिनेटली आयनिक एंड प्रोवाइड्स साइनाइड्स आयन इन सॉल्यूशन while AgCN is mainly covalent। अगर बच्चे के पास टाइम बहुत कम है और बच्चा ये दो लाइन लिख रहा है तो मैं पूरे नंबर उसको दूंगा, क्योंकि मेन कॉज तो यही है KCN आयनिक है, एक्सिस में CN नेगेटिव आयंस फर्निश करती है, और वो बॉन्डिंग दोनों तरह से कर सकता है, C बॉन्ड C भी बन सकता है, C बॉन्ड N ही बन सकता है, बट C बॉन्ड C will be preferred because it is more stable than the C bond N। जबकि AgCN कैसा है, मेनली कोवेलेंट है,
and nitrogen is free to donate electron pair forming isocyanide as the main product. वहां भी ऐसा नहीं है कि मेनली आइसोसाइनाइड ही बनेगी, साइनाइड भी बन सकते हैं, लेकिन मेन प्रोडक्ट में क्या बनेगा आपका आइसोसाइनाइड बनेगा। अब देखिए लैंग्वेज कितनी स्टैंडर्ड और कितनी बैलेंस लिखी गई है। KCN is predominantly ionic and provides cyanide ions in solution. Although both carbon and nitrogen atoms of cyanides are in a position to donate electron pairs, the attack takes place mainly through carbon atom and not through nitrogen atom, since C single bond C bond is more stable than C single bond N bond. However, AgCN is mainly covalent in nature and nitrogen is free to donate electron pair forming isocyanide as the main product. Which compound in each of the following pairs will react faster in SN2 reaction with OH negative? बताइए CH3Br और CH3I में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इन SN2? CH3I. Out of these two compound, it is tertiary and it is primary. So SN2 में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है अल्काइल के क्या रहता है 1 डिग्री, then 2, then 3 डिग्री है द लीस्ट रिएक्टिविटी। तो कौन सा आंसर हो गया इसका? CH3CH। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फाइंड कर लेंगे इसमें हम लोग। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये तो आपका टर्शियरी हो गया, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। 1 ब्रोमोपेंटेन की सबसे ज्यादा होगी 1 ब्रोमोपेंटेन, और 2 ब्रोमोपेंटेन सेकेंडरी हो गया तो इसकी रिएक्टिविटी इससे कम होगी। तो इट इज द इंक्रीजिंग